अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कल एक मुलाकात अहम हुई कि मौलाना फजल रहमान जिहड़े ने वो एक होर मुफाहमत दे बादशाह जिहड़े ने चौधरी शुजात हुसैन उन्हां नाल मिले ते मुफाहमत दे एक वड्डे बादशाह आसफ अली जरदारी चंद दिन पहले मौलाना नूं मिले। ये तीन बंदे जिहड़े ने, ये तीन रहनुमा जिहड़े ने, इन्हां दी सियासत वक्खो वक्ख हो सकदी, इन्हां दे बयानात वक्खो वक्ख हो सकते हैं, पर इन्हां विच एक कदरे मुश्तरक है, यानी एक कॉमन चीज़ हैगी। वो की चीज़ है? ये चीज़ है कि मुश्किल हालात दे विच भी वो तहम्मुल दा मुजाहरा करते हैं। मुफाहमत वास्ते, जोड़ तोड़ वास्ते इन्हां दी सलाहियत जिहड़ी वो बाकी सियासतदानां नालों ज़्यादा है। फिर ये वे कि इन्हां दा रवैया लचकदार है और सब नालों अहम चीज़ जिहड़ी इन्हां नूं ताकतवर बनाउंदी वो ये वे कि हर दौर दी जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट हैगी उहदे नाल इन्हां दे ताल्लुकात कदी भी खराब नहीं होए। इन्नी गुंजाइश रहिंदी है कि गलबात हो सके और मुकालमा हो सके, उन्हां दी मन्नी जा सके, अपनी मनवाई जा सके, ये हमेशा रहिंदी। तो यह भी होंदा है कि असीं वेखदे आए हाँ, साडे नाल जिहड़े सीनियर लोग ने वो भी यही दसदे रहे ने, असीं पढ़िया भी इंज ही, आप भी ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ संभाली अखबार वेख्या पढ़िया तो आप भी मुशाहिदा किया कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ और ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇਰਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਦੁਬਈ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਇੱਕ ਗਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਗਏ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਮੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
कि अगर कोई ऐसी कानून साजी होंदी है जिंदे उत्ते गुमान ज़्यादा यही कि मौलाना अपने फायदे वाली गल जी ना वो रखते हैं कि मौलाना किसी वजह नाल उस कानून साजी ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं तो तहरीक इंसाफ भी कोशिश करेगी सपोर्ट करना। हाँ उन्होंने अपनी एक शनाख्त हैगी वो कितने हो सकता है इख्तलाफ भी करन लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बहरहाल हो रही है और दोवें गुंजाइश पैदा करन रहे ने गलबात करन दी। सियासी सतह के उत्ते ये सारी मुलाकातां दा यानी असी अगर हिसाब लाइए रियासत के इशूज़ अलग लेकिन सियासी बहरान के हवाले नाल की सियासी बहरान हैगा की है सियासी बहरान हैगा वे कि PTI जिहड़ी है वो मौजूदा सिस्टम नूं और इलैक्शनस जिहड़े होए फरवरी दे विच उहनूं तस्लीम नहीं करती पई। ऐ वे फार्म 47 वो इशू हैगा वे इशू ये वे कि मैंडेट दे चोरी की गल की जाती और वो कहा जाता है कि उस तो बगैर असी गल नहीं करनी। इन दे नाल एक सियासी बहरान मौजूद है अगरचे तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे मैंबर पार्लीमेंट च पहुँच चुके हैं लेकिन उन्होंने ख्याल है कि उन्होंने अक्सीयत ज़्यादा हैगी जिन्हों घटाया गया तो जिन्नी देर तक उन्होंने अक्सीयत वापस नहीं उन्होंने मिलती उन्नी देर तक वो मुल्क दे विच एहतजाज और सियासी तौर पर अदम तावन जी इनका रवैया वो जारी रखेंगे एहतजाज करते रहेंगे बार बार कॉल देंगे और फिर जो तक उन्होंने लोगों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे उन्नी देर तक वो अपना एहतजाजी जिहड़ा मोड है उन्होंने ऑन रखेंगे। अच्छा इन दे नाल होया है कि मुल्क की मईशत खराब हुई अदम इस्तेहकाम आया गैर मुल्की सरमायाकार भज गए साढ़े को जिहड़े हैगे ने वो भी भजन नूं तैयार साढ़े अपने लोग नहीं इत्थे ठहर ये छोटी गल नहीं हैगी एक एक गल जिहड़ी इहदे उत्ते कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं इन डेप्थ जाके लेकिन असी बावजूद तफसील दे विच नहीं जा रहे अगरचे कई दोस्त कहते हैं कि तुसी अपने तबसरियां दे उत्ते कई बार अमूमी निकल जाते जे लेकिन तफसील च जाया करो तो किसी दिन हालात इस काबल होए तो जरूर असी तफसील च भी जावांगे। तो इन दे विच असी गल जिहड़ी हुण ही करन डे कि सियासी बहरान हैगा PTI का सियासी निज़ाम का जिहड़ा एक विच एक जिद्दी बच्चे का किरदार इन दी वजह नाल ये बहरान है तो ये अगर सैटअप नूं कबूल कर लवे PTI किसी वजह नाल मतलब एक कबूल करन दी शक्ल ये वे कि वो पार्लीमेंट दे विच कहे कि जो कानून साजी हो रही है असी उहदे उत्ते ठीक है तुहानूं हमायत करांगे या इन्हां दे बिहाव दे उत्ते इतिहाद करते हैं या एक ऐसा तलक मौलाना ना बन जाता है इन्हां दे बिहाव दे उत्ते मौलाना यकीन दवा देंदे ने किते कि जनाब हो जाएगा तो वो एक आसानी हो जाएगी। ये लिंक है ने सूरत हाल जिस पासे जा रही है वो एवें नहीं जा रही कोई ऐसे एक्टर हैगे ने जिहड़े उस सूरत हाल नूं कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने एक खास सिमत ड्राइव करन रहे हैं। तो ये अगर असी दोवें चीज़ों को समझांगे तो सानूं अंदाज़ा हो जाएगा कि किहड़े पासे कौन चला रहा। तो PTI जिहड़ी है उनके रवैये दे विच सानूं लगदा पिया है कि एक तब्दीली आ रही ये तब्दीली इमरान खान साहब नूं पुछ के आ रही या नहीं पुछ के आ रही एक अलग गल है लेकिन जिहड़े पार्लीमेंट दे विच उन्हां दी नुमाइंदगी मौजूद है PTI की वो ये किरदार अदा कर रही। अच्छा PTI का कौन बंदा है जिहड़ा इस तब्दीली या इस सूरत हाल नूं चला रहा है यानी 3 सियाणियां दी मैं गल कर दी मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात हुसैन ते सदर आसफ अली जरदारी। चौथा सियाणा जिहड़ा है ना वो PTI दे कोल है और उनका नाम है असद कैसर। असद कैसर और मौलाना दी मुलाकातां जिहड़ियां होईयां मैं पहले भी व्लॉग च दस्सिया कि जिहड़ा सानूं दस्सिया जाता है ना कि फलां मिलिया तो बाहमी दिलचस्पी के अमूर सियासी तौर पर इकट्ठे चलन तो इतफाक या ये गल्लां होंदियां ने मीडिया नूं दस्सण वास्ते जिहड़ी असल गल होंदी वो नहीं दसी जाती। तो ये जिहड़े लिंक ने ये कड़ियां अगर तुसीं मिलाओ तो सानूं ये लगदा पिया कि अगले कुछ अरसे दे विच साडी सियासत विच कोई तब्दीली या कोई वड्डी एक चेंज आती नज़र आ रही। तो उनका एक ताज़ा जिहड़ा मिलिया सबूत वो ये वे कि मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं सितंबर दे विच इलाज वास्ते लंडन। वो भी अपनी जगह सियासत के एक वड्डे और सियाणे ने वो लंडन जा रहे हैं दस्सिया जा रहा है इलाज वास्ते जा रहे हैं ज़ाहिर बीमार रहे ने वो उन्होंने उत्थे होणगे मुआलजे दे नाल मामलात लेकिन कुछ साढ़े जिहड़े जराए ने उन्होंने ख्याल है कि वो सिर्फ इलाज वास्ते नहीं जा रहे
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਸਰੇ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।